تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد. اب شب برات کسے کہتے ہیں؟ یہ نصف شعبان کی 15ویں یعنی کہ 15ویں تاریخ کی جو رات ہوتی ہے اس کو نصف شعبان یا 15ویں تاریخ کی رات کہتے ہیں، جسے ہم شب برات، لیلۃ البرات، برات نہیں برات، امت نے اس کو برات بنا دیا. یہ والی برات نہیں جو دولہا لے کے جاتا ہے برات، یہ نہیں. شب برات یعنی کہ جہنم سے آزادی. برات کے معنی آزادی، تمہاری بخشش اللہ نے کر دی، مغفرت تمہاری کر دی. اس کا نام شب برات، شب مغفرت، شب رحمت اور لیلۃ البرات، یہ تمام ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے. اب بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، اس رات میں سب لوگ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، مطلب بہت زیادہ اس کے اندر آتش بازی کرنا، جماعت کے ساتھ قبرستانوں میں جانا. اس کا ثبوت ابھی آئے گا، میں بتاؤں گی حدیثوں کے حساب سے. اور کیا قبرستان کے ایک ہی دن جائیں گے ہم لوگ اپنی زندگی میں؟ روزانہ جاؤ، آپ روزانہ اپنی مردوں کے لیے دعا کرو. تو اس کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف حدیثوں سے ثبوت ملتا ہے. کئی ضعیف حدیثیں جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر کئی اچھے لوگ جب ایک بات کو بتا رہے تو اس میں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں سچائی ہو سکتی ہے. تو کئی ضعیف حدیثیں جب مل جاتی ہے، صحیح حدیث اس کا ایک بھی نہیں ہے اس میں. اور کسی صحابہ کو کوئی ایسا عمل بھی ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں وہ قبرستان گئے ہوں یا انہوں نے یہ عمل کیا ہو. جو اصل چیز میں مفہوم جو بتانا چاہ رہی ہوں ان باتوں کا، اس کو دھیان دینا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو شب برات کیونکہ مغفرت کی رات ہے، اس کا ثبوت کئی حدیثوں سے، ضعیف حدیثوں سے ملتا ہے. جب کئی ضعیف حدیثیں ایک جگہ مل جاتی ہیں تو وہ حسن لغیری کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کی عظمت میں، ان کی بات میں پھر ایک وجود بنتا ہے. تو یعنی کہ یہ رات گزری ہے. اور اس سے ثبوت کیا ملتا ہے؟ اس میں 3 چیزوں کا اہتمام کرنے کی ثابت کیا ہے، 3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر 1، شب برات میں جو بھی عمل کرے انفرادی طور پر کرے، اکیلے کرے. نصف شعبان میں 15ویں تاریخ میں جو بھی ہم عمل کریں تو انفرادی طور پر کریں، اجتماعی طور پر کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے. اپنے اور اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے، پہلی بات. دوسری بات کیا کرے، نصف شعبان کے اس دن کیا کرے، جو اگلے دن کا ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، بعض اس دن بھی رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنا مستحب بتایا گیا، نہ تو واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ ہی سنت ہے. سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے. مستحب وہ چیزیں ہوتی ہیں اگر تم کرو تو تمہیں ثواب اللہ زیادہ دے گا، نہ کرو تو کوئی تم پر گناہ نہیں ہے. اب جو نہیں کرتے یا نہیں رکھ پاتے روزہ، یا کسی وجہ سے ان کی عبادت میں آنکھ نہ کھل پائی، تو کوئی ملامت ان پر نہیں ہے، کیونکہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، صرف مستحب ہے. تو اگلے دن کا روزہ رکھنا وہ چاہے رکھ سکتے ہیں. یہ چاند کی 3 تاریخ آتی ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ. ان کو، یہ چاند کی جو تاریخ ہوتی ہیں ان کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. جب چاند روشن ہوتا ہے، چاند کی 3 تاریخ ہوتی ہیں، تو ہر مہینے کی چاند کی تاریخ میں آپ روزہ رکھ سکتے ہو. بعض دیکھو شب رات سے اگلے پہلے دن بھی رکھتے ہیں، پھر اس دن بھی رکھتے ہیں، پھر اگلے دن بھی رکھتے ہیں. تو یہ کوئی اسپیشل شب رات کے لیے حکم نہیں دیا گیا کہ تمہیں اسی دن رکھنا ہے. ہر مہینے کی چاند کی ان 3 تاریخ میں آپ نفلی عبادت روزے رکھ سکتے ہیں. تو اس کے اگلے دن روزہ رکھنا کیا ہے، مستحب ہے. رات میں عبادت کرنا، کہ رات میں عبادت کرنا یعنی کہ قیام کرنا، کھڑے ہونا، دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، درود پڑھنا، استغفار پڑھنا، استغفار کی کثرت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور انفرادی عمل کرنا. کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو اجتماعی ہو. جیسے بعض عورتیں، بعض خواتین صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے ادا کر رہی ہیں، عورتوں کی اکٹھے ہو رہی ہیں اور اکٹھے ہو کے دعائیں مانگی جا رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اپنے گھروں میں عبادت کریں. قبرستان جانا، میں نے بتایا ہے قبرستان جانا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ اپنے مردوں کے اگر چلے گئے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اس نسبت سے نہ جائیں کہ ہاں آج کی تاریخ میں حکم دیا کہ ہم آج ہی جائیں. اور مسجدوں میں اجتماعی طور پر مرد حضرات جو جمع ہوتے ہیں اس کو بھی علماء کرام منع فرماتے ہیں. اپنے گھر میں اپنے بیوی کو ساتھ، بچوں کو ساتھ لے کر گھر کھڑے ہو کے گھر میں نماز پڑھیں. اور یہ عمل تم روزانہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ سال میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کو ایک رسم مت بناؤ. کوئی چیز رسم کے اعتبار سے ہو، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو سارا مہینہ ایسے ہی نکلے گا. رمضان میں تھوڑی توفیق ملے گی، تھوڑی مسجدیں بھری ہوئی دکھائی دیں گی. کیا کہ صرف رمضان میں اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا؟ یہ تو 5 وقت کی نمازیں جب سے وہ اس پر فرض کی گئی ہیں، جب سے لگا کر جب تک وہ زندہ رہے گا فرض ہیں اور پڑھنی ہے. تو مسجدیں تھوڑی سی اللہ کی رحمت سے تھوڑی بھری ہوئی دکھائی دیں گی. اور جیسے جیسے رمضان گزرے گا، آخر آئے گی، عید ہو جائے گا، اس کے بعد اگلے دن تو یہ لگا لو کہ عید یا عید کے بعد تک تو مسجدیں بالکل خالی ہونی شروع ہو جائے گی.
तरावी पढ़ने के लिए लोग आएंगे तो कुछ दिन पढ़ेंगे और उसके बाद मस्जिदें खाली रहेंगी, सब पीछे की खाली रह जाएगी। पहले दिन दूसरे दिन बड़े जोर शोर लगा के बच्चे बड़े बूढ़े सब आएंगे और दूसरे तीसरे दिन मस्जिदें खाली हो जाएंगी। तो ये कोई भी चीज रस्म के एतबार से ना हो कि इसी फला तारीख को करना है, ये करना है। अल्लाह से हम चलते चलते मांग सकते हैं। अब हदीसें क्या आती है, हदीस से सुनो। तो हदीस में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी का दिन था, तो आपके साथ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेटी हुई थी, तो आप सो रहे थे। उसके बाद आप उठे, जिब्रील अमीन आए। तो जब जिब्रील अमीन आए, तशरीफ लाए, तो आप उठे और जिब्रील अमीन ने फरमाया कि आज ये ज़ईफ हदीसों से सबूत मिलते हैं कि आज की जो रात है वो शबे बारात यानी कि शाबान की रात है। मैं कि ये रात शाबान की 15वीं रात है। अल्लाह जल्ले शानु इस रात में इतने ज्यादा लोगों की दोज़ख से आजादी फरमाते हैं कि जितने कबीले कल्ब की बकरियों के बाल होते हैं, इतने लोगों की अल्लाह ताला जहन्नम से आजादी फरमाते हैं। तो जब आपको इतनी बड़ी बात आप हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताई, जिब्रील अमीन ने बताई, तो आप उठे और आराम से उठे। आपने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी उठाने की ज़हमत नहीं समझी, उनको सोने दिया। आप उठे, धीरे से बाहर निकले। इसी बीच में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंख खुल गई। अगर आप ना उठती तो पता भी नहीं चलता कि ये रात कोई होती है। इसी हदीस से सब लोग इस्तदलाल करते, मतलब इसी हदीस को बताते हैं कि ये सबूत मिलता है। तो आप जन्नतुल बकी की तरफ गए। उस रात में जन्नतुल बकी की तरफ जब जा रहे थे तो हजरत आयशा सिद्दीका ने आपको देख लिया कि आप कहीं जा रहे हैं। तो हजरत सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला ने सोचा शायद आप दूसरी बीवी के पास जा रहे हैं मुझे छोड़कर। तो उनके दिल में थोड़ा वसवसा आया इस चीज का, तो वो पीछा करने लगी। जब आपने देखा कि आप जन्नतुल बकी की तरफ चले गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने वहाँ दुआएं मांगी अपने मुर्दों के लिए, कब्रिस्तान वालों के लिए। उसके बाद आप वापस जब तशरीफ लाने लगे घर की तरफ, तो अब हजरत आयशा सिद्दीका आपको देखती रही। तो उससे पहले अल्लाह के नबी आ रहे, तो उससे पहले हजरत आयशा सिद्दीका आकर अपने बिस्तर पर ऐसी लेट गई गोया के उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। तो लेट गई, तो उनकी जब जल्दी दौड़ के आई तो अल्लाह के नबी को महसूस हो गया और उनका सांस फूल रहा था। जब आप आकर लेटे, चुपके से लेट गए, फिर बताया नहीं कि मैं आज जन्नतुल ऐसी रात है और मैं जन्नतुल बकी से आया हूँ दुआ मांग के, फिर भी नहीं बताया। तो जब उनकी सांस फूलने लगी तो उनको अल्लाह के नबी को पता चल गया कि आयशा, क्या तुम मुझे ये समझती हो कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी करूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बारी का दिन होगा मैं दूसरी बीवियों के पास चला जाऊंगा? ऐसा नहीं है। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने इस बात का एतराफ किया कि हाँ अल्लाह के नबी, मेरे दिल में इस तरह की बात आई थी, इसीलिए मैंने देखा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और वो फरमा रहे थे कि निस्फ शाबान की आज रात है और इस दिन अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आकर लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, जहन्नम से आज़ादी फरमाते हैं और जो जिसको मांगना है वो मांगो, अल्लाह अता करने वाला है। तो मैं अपने मुर्दों के लिए बख्शीश की दुआ मग़फ़िरत करने के लिए गया था। अगर ये अमल इतना बड़ा होता तो सहाबा का भी अमल पेश आता। सहाबा भी तमाम इकट्ठा हुआ करते इस रात में, कब्रिस्तान जाया करते। सहाबा से कोई सही हदीस नहीं मिलती, क्योंकि जो अमल का सबूत मिलता है वो सही हदीस से मिलता है, उसी पर हमें अमल करना है। और उसके बाद कोई ऐसा अमल भी नहीं मिला। लेकिन अल्लाह के नबी ने खुद दूसरों को अमल करने के लिए नहीं कहा। अब जो अगर कोई खड़ा होता है, इबादत करता है इस रात में, तो उस पर कोई गुनाह भी नहीं, उसको सवाब है। इबादत कर रहे हैं, लेकिन इबादत में क्या हो, रस्म ना हो, कोई जमात से नमाज पढ़ना, जमात से मस्जिदों में जमात मतलब सलातुल तस्बीह की जमात कराना और कब्रिस्तान में इकट्ठे होना, फिर वहाँ से चीखते चिल्लाते आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, बाइकों में जा रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रखी है, खूब ठट्टे मार रहे हैं। ये चीज़ों का अल्लाह ने कभी हुक्म नहीं दिया, अल्लाह के रसूल ने कभी हुक्म नहीं दिया। हमारी नौजवान नस्ल यही करती है, एक रात मिलती है, घूमती है फिरती है, कब्रिस्तान चले गए, दुआ जैसी कर ली, ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए सबकी। आगे देखो आप रोड पर बाइक है, शोर शराबा, पूरी रात यही इसी तरह से रात गुजारी जाएगी। और इसमें कुछ लोग और भी होते हैं जो बहुत ज्यादा खाना पकाना, देगे चढ़ाना और बहुत ज्यादा घरों में खाना तक वो अगले दिन कर दो। इस नियत से करो कि खाना किसी को खिलाना इस्लाम ने पसंद फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है कि खाना खिलाओ, एक दूसरे की रज़ाजोई के लिए, दिलों को मिलाने के लिए। और नए कपड़े बनाने की भी कपड़ों के ऊपर बात आ गई, तो क्या है कि नए कपड़े हमने क्या करते हैं, अब शब रात आ रही, जल्दी जल्दी कपड़े तैयार करके रखो। क्या अल्लाह ताला नए कपड़ों में ही हमारी इबादत कबूल करेगा? पुराने कपड़े हमारे पास हो, साफ सुथरे हो, अपना अच्छे तरीके से खुशबू, मतलब औरतों तो चाहे तो घर में लगा सकती है खुशबू, बाहर ना निकले,
अच्छे साफ सुथरे कपड़े हो, मुसल्ले पे खड़े हो। मेरी बंदी, तुम्हारे कपड़े अगर फटे हुए भी है ना, उस पर पैबंद लगा हुआ है, तुम्हारे अमल मजबूत है, तो अल्लाह उसी को कबूल करेगा। महंगे महंगे कपड़ों में इबादत नहीं होती, हकीकत याद रखना, इबादत दिल से होती है। और जो पहले सहाबा इकराम सहाबिया जो गुजरी हैं, खाने को नहीं मिलता था। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी की लख्ते जिगर, आपके जिगर का टुकड़ा, हजरत फातिमा बैठकर नमाज अदा की है कई मरतबा। खड़े हो तो बदन जाहिर होगा, दिखाई देगा कि कपड़ा इतना नहीं था पूरा कि मैं बदन ढक लूं। है कोई रस्म, कहीं कहीं किसी रस्म मिलती है कि वो सुन्नत तरीका है, रमजान में खूब कपड़े हम, ठीक है बना लो, अल्लाह ने जिसको दिया अच्छे कपड़े पहनो, इस्लाम में इसको भी मना नहीं किया। लेकिन कोई चीज रस्म के एतबार से ना हो कि हम रमजान में उसी कपड़े में नमाज पढ़ेंगे जो नया सिला हुआ हो। अगर किसी के खाविन की इतनी इनकम नहीं है और हालात नहीं है, तो क्या तुम इबादत नहीं करोगे? असल क्या है? इबादत करना। असल है मुसल्ले पर खड़ा होना, आजिज़ी करना, गिड़गिड़ाना, माफी मांगना अल्लाह से कि अल्लाह तू हमें कबूल फरमा ले, जो जिंदगी जिहालत में गुजर रही है उससे निकाल कर हमें हमारी औलादों को जहन्नम के अजाब से माफी दे, मगफिरत फरमा। असल ये है। और इस रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मगफिरत फरमाते हैं, लेकिन 6 लोगों की मगफिरत इस रात में भी नहीं होती। ना तो अल्लाह उनकी तरफ नजरे करम करेगा, ना अल्लाह ताला रहमत की नजर से देखेगा, ना उनसे कलाम करेगा। वो 6 लोग कौन कौन से हैं? और वो 6 बीमारी शायद एक ना एक हम सबके अंदर अगर है, तो आज इसी बात पर मैं भी और आप भी तौबा करें। कौन सी चीज? नंबर 1, मुशरिक। इस रात में मुशरिक की भी बख्शीश नहीं होती। नंबर 2, किना रखने वाला। दिलों में किने की जो बीमारी होती है, अक्सर हम शायद सभी शामिल हो। वो किसी से भी हो सकती है, क्योंकि किना किससे होता है? किना कपट, कोड़न होती है ना दिल में किसी को देखकर, चाहे वो कोई दुश्मन हो अपना, तो हम लोग क्या करते हैं? कुड़ते हैं उसे देखकर, उसके अच्छे रहन सहन पर, खाने पीने पर, या दुश्मनी हो गई या ऐसे बात उसने बोल दी, तो तमाम तरह की बातें हम कुड़न करते हैं, तो इसको किना कहते हैं। तो अगर कोई किना कपट करने वाला हो तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह जब इस रात में आप खड़े हों, और मेरे लिए भी दुआ करना, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी, जब आप खड़े हो रात में, तो इस रात में सबसे पहले ये करें कि अल्लाह आज मैंने अपने सब जितने लोग थे मैंने सबको माफ कर दिया, अल्लाह तू भी मुझे माफ फरमा, और मेरे दिल में किसी दुश्मन के लिए भी कोई किना ना है, कि मेरा दिल बिल्कुल पाकीज़ा है। जो हदीस में बात लिखी हुई वो हकीकत है। तो किना जरा सा भी किसी के दिल में ना हो, ना तो किसी दुश्मन के लिए हो, ना किसी अपने के लिए हो, ना किसी गैर के लिए हो। दिलों को बिल्कुल साफ सुथरा करके, जैसे धो दिया हो वैसे साफ सुथरा करके मुसल्ले पे खड़े हो। 2 इंसान हो गए, एक मुशरिक और एक किना करने वाले, उनकी अल्लाह ताला इस रात में भी मगफिरत नहीं फरमाते। और तीसरा फरमाया रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला। तो ये होती है रिश्तेदारी तोड़नी, रिश्तेदारी को जोड़ने। अगर ऐसे देखो हम तोड़ते रहेंगे तो हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। और इस्लाम की कमजोरी क्या है? आपस में लड़ाई झगड़ा, रिश्तेदारी को तोड़ना। हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे, दूसरे लोग आकर फिर हम पर हमारा फायदा उठाएंगे। तो रिश्तेदारी को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है अल्लाह की रजा के लिए। अब खुद कोई नहीं रखना चाहता तो उससे किनारा कर लो, लेकिन उसके लिए बुरा नहीं सोचना। दुआ करनी है कि अल्लाह इसकी भी मगफिरत फरमा, मेरी भी मगफिरत फरमा। चौथा नंबर पर आता है माँ बाप का नाफरमान। जो लोग अपने माँ बाप को जलील करते हैं, रुसवा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन्हें परेशानी देते हैं, दुख देते हैं, 4 लोगों के बीच में खड़े होकर कहते हैं मेरा बाप ऐसा है। माँ बाप के बारे में मैं भी 3-4 दिन पहले तफसीर में लिखवा रही थी। तो माँ बाप कैसे भी हो, उनके लिए कभी गाली का अल्फाज भी नहीं बोलना, क्योंकि जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं वो हम नहीं कर सकते। अब वो चाहे कैसे भी हो, यहाँ तक कि अगर किसी के माँ बाप काफिर भी हो तो उसने सलूक का मामला करो। माँ बाप अगर मुसलमान नहीं हुए हैं, हम मुसलमान बन गए या हैं पहले से ही, माँ बाप हमारे अभी कुफ्र की जिंदगी में जी रहे हैं, जिहालत की जिंदगी में, उनके साथ भी अच्छा सलूक करो, तो अपनी जानिब से कोई कोताही ना हो जाए। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को निकाल देते हैं घरों से, तो ठीक है चुपके से निकल जाओ, ये भी माँ बाप का हुक्म मान के कि हमारे माँ बाप ने हुक्म दिया, ठीक है राजी से निकल जाओ। तो जो अल्लाह को पसंद हो, अल्लाह की रजा के लिए वो अमल करो, तो हमारी इबादत और ज्यादा नूरानियत बन जाएगी, इसका अजर और ज्यादा मिलेगा। माँ बाप के नाफरमान के बाद आता है अपनी इज़ार को, अपने तैमन को टखनों से नीचे ले जाने वाला। आखिर में आता है 6वां नंबर आता है, जिसमें इस रात में उस शख्स की भी बख्शिश नहीं होती, वो होता है शराब का आदी। आज एक बहुत बुरी बीमारी चल रही है हमारे अंदर कि हमारे मुसलमान बच्चे बेचारे
नशे के आदी हो चुके हैं। गली गलियों में शराब, जुआ, सट्टा और ये खेलते हैं और इसमें शामिल हैं और नशे के आदी हैं, हर वक्त नशा करते हैं। तो एक है कि किसी ने मतलब कभी कभार पी ली, क्योंकि बुराइयां तो बहुत है। एक है हर वक्त नशे में धुत रहता है, नशे उसकी जिंदगी बन गया है कि अब से निकलने का ही नहीं। तो इस रात में उसकी भी बख्शीश नहीं होती। तो इस रात में पता चल गया हमें क्या करना है। इनफरादी इबादत करनी है, नफलें पढ़नी है। नफलों की भी कोई तायीन नहीं करनी है, तादाद की तायीन नहीं करनी है कि हमें यही नफलें पढ़नी है। जैसे पर्चा बांटा जाता है कि इस रात में पहले मगरिब के बाद ये वाली नमाज, 2 रकात ये पढ़ो, 2 रकात ये पढ़ो, 2 रकात ये पढ़ो, फिर ईशा के बाद यासीन पढ़ो, फिर ये पढ़ो। यासीन तो दिन में तुम 50 बार पढ़ो, इस रात में भी कितनी पढ़ो, कोई तायीन नहीं है, जितनी तुम्हारी ताकत कुव्वत हो। अब हदीस से आएंगे, मैं बताऊंगी अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। तो नमाजें पढ़ो, सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को साथ इकट्ठा कर लो और नफली इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, तस्बीहात पढ़ो। जो ख़वातीन नमाज नहीं पढ़ सकती या हैज से हैं तो उस दरमियान में वो इस्तगफार पढ़ ले, बैठ के मुसल्ले पर बैठ ले, तस्बीहात पढ़ ले, जिक्र कर ले, इस्तगफार पढ़ ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ नहीं, अगले दिन रोजा रख लो, ये मुस्तहब बताया। रखने की ताकत है तो रखो, नहीं रखा जा रहा, तबीयत खराब है, बीमार है, तो इस चीज पर अफसोस मत करो कि मेरा रखा नहीं गया। हाँ, रमजान मुबारक के जो रोजे आएंगे वो फर्ज है। यही जिंदगी तुम्हें मिली, अब तो या तो अब कर लो या कब्र में सवाब ले लो इसका। तो ऐसी इबादत करनी है इनफरादी तौर पर, उसमें कोई दिखावा ना हो और एक दूसरे से सुलह करो, कोई हमसे लड़ाई झगड़े करने वाला ना हो और हर चीज पर सब्र करो। अल्लाह ताला को सब्र करने वाले बंदे बेहद पसंद है। लास्ट हदीस रह गई 2-3 बस। शाबान के महीने की फजीलत, ये महीना ऐसा है कि इसके भी बहुत फजाइल है। जैसे कि हदीस मुबारका है, हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते थे कसरत से आप रोज़ा रखा करते थे। जब हम आपको देखते तो आप कसरत से रोज़ा रखते थे और यहाँ तक कि हमें लगता था कि अब आप रोज़ा नहीं तोड़ेंगे। और जब आप रोज़ा रखते थे तो ऐसा लगता था कि रोज़ा नहीं तोड़ेंगे, और जब आप रोज़ा नहीं रखते थे तो ऐसा लगता था कि अब आप रोज़ा ही नहीं रखेंगे। यानी कि आपने रमज़ान मुबारक के अलावा जिस महीने में कसरत से रोज़े रखे वो शाबान का महीना था। शाबान के महीने में आप कसरत से रोज़ा रखते थे। अगली हदीस मुबारका है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा